How are you? I hope you will be fine. Okay, students, let's start our today's lecture. Our today's lesson is exercise of unit number 10, A World Without Book. Today we will do glossy and question answers of this exercise. Okay, let's start. First of all, glossary. Here are some words and we have to memorize meaning of these words and different synonyms of these words. So the first word is aspiration. Aspirations mean tamannaएं, a desire to achieve something like goals, objectives and aims, you can say that. Beaming. Beaming means मुस्कुराता हुआ, दहकता हुआ, smiling in a very obvious way like glowing happily or joyfully. ब्लॉग. ब्लॉग मीन मालूमाती वेब पेज से कहते हैं. A biographical weblog, the page usually contains someone's personal opinions, comments and experience. A web page giving information and giving personal opinions and comments of anybody. Next word is decade. Decade mean अशरा 10 साल, a period of 10 years. ठीक है, 10 years period को हम decade बोलते हैं. डिफे. डिफे मीन disobey, मीन्स के इनकार करना. ठीक है. डिमाइज. डिमाइज मीन जवाल आना, खात्मा हो जाना किसी चीज़ का. द टाइम व्हेन समथिंग स्टॉप एग्जिस्टिंग. एंड फिनिश, डेथ, टर्मिनेशन. दीज आर द डिफरेंट सिनोनिम्स ऑफ डिकेड. डिफे सॉरी डिमाइज. लॉथ. लॉथ मीन नफरत करना, लाइक हेट, टू डिसलाइक समबडी और समथिंग इंटरेस्टली, डिटेस्टेड एंड abhor. नेक्स्ट वर्ड इज निगेट. निगेट मीन मुस्तरिद कर देना. प्रूव समथिंग इज फॉल्स, नलीफाई, डिसअप्रूव एंड रिजेक्ट और रिफ्यूट आर द डिफरेंट सिनोनिम्स ऑफ डिकेट. प्रिवेल. प्रिवेल मीन्स आम होना, लाइक यू कैन से दैट फैल जाना, किसी चीज़ का छा जाना. बिकम द मोर यूजफुल, बी और बिकम द मोर यूजफुल समथिंग. रेवलेशन. रेवलेशन मीन इंकशाफ करना, लाइक द रिवीलिंग ऑफ समथिंग प्रीवियसली हिडन और सीक्रेट. अवेयरनेस, डिस्कवरी, अ स्ट्रिकिंग डिस्क्लोजर. These are the different synonyms of revelations, and different revelations mean इंकशाफ करना. Okay, this is the glossary of this chapter. Let's move towards the question answers. So the first question is, हाउ डज़ अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर. यानी कि किस तरह एक जो बुक है वो कनेक्शन शो करती है एक रीडर और राइटर के दरमियान. अ बुक वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्स ऑन द पेजेस. थ्रू दिस ब्रिज द रीडर इज़ कनेक्टेड विद द आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर. यानी कि राइटर का एक जो रीडर है उसका एक कनेक्शन क्रिएट होता है राइटर के साथ, यानी कि उसकी फीलिंग्स, उसके आइडियाज़ के साथ. और दूसरा वो यानी कि एक कनेक्शन होता है एक वर्ल्ड और एक रियल वर्ड और उस वर्ड के दरमियान जो कि यानी कि उन पेजेस पर डिस्क्राइब किया जाता है. यानी बाय रीडिंग अ बुक यू कैन से दैट बाय रीडिंग अ बुक द रीडर एंटर्स इनटू द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय द राइटर. दस द बुक लिंक्स द बोथ. A book connects the readers and the writer. The book reflects the ideas and thoughts of the writer and establish a deep connection between the imaginary world created by the writer and the real world. Second question is, in what way books are better than radio, TV and internet? यानी कि इतने टेक्नोलॉजिकल टाइम पीरियड में भी किताबों को लोग पढ़ना, उनकी स्टडी करना, उन्हें रीड आउट करना पसंद करते हैं. इट्स द हॉबी ऑफ द पेपर. तो इसमें राइटर कहते हैं कि क्यों बुक्स इम्पोर्टेंट हैं रेडियो और टेलीविज़न और इंटरनेट से, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजीज़ के बावजूद भी. तो देयर आर सम बेनिफिट्स. यू कैन कीप book reading is easier than watching TV, listening radio, or using internet. One can read a book whenever and wherever one likes, but one is unable to use technology all the time. And you can say that you can keep a book with you forever. You can read it whenever and wherever you like. Radio, television and internet do not have these qualities. Thus books are better than radio, TV and internet. Okay. यानी कि we can say that we can enjoy the books at any time and at any place. We can keep the book with us anywhere, whereas radio, TV and internet do not offer such luxury. So books are better than other technologies.
Next question number 3 is slow food in a world given over the to fast food. Explain. Means book reading is time taking like slow foods. It is replaced with fast food means ebooks or e-blogs something. Like you can say that the present world is very fast. People do not have time even to eat peacefully. Thus they prefer eating fast food to save time. On the other hand, the world of books is slow. मीन्स के बुक से टाइम टेकिंग है. यू रिलैक्स विद द बुक इन योर हैंड, रीड इट एंड फीड योर थॉट्स. thus the peaceful world of book is slow when contrasted with the actual fast world of fast food. ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. मीन्स के दुनिया जो है ना वो तेज़ी से चल रही है और वो फास्ट फूड को लाइक कर रही है. यहाँ पे लोगों के पास खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है तो वो फास्ट फूड को प्रेफर करती है. तो इस टाइम में जो बुक्स हैं वो टाइम टेकिंग है. ठीक है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ सो फास्ट दैट पीपल हैव नो टाइम टू रिलैक्स एंड रीड अ बुक. एंड रीडिंग बुक इज़ लाइक अ स्लो फूड दैट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट. सो पीपल प्रेफर टू रीड blogs, text messages, and books on their mobile phone. So modern technologies are like fast food. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स. यानी कि लोग क्यों यानी कि रीडिंग बुक्स को ज़्यादा लाइक करते, ज़्यादा मौका क्यों देना चाहते हैं. बुक्स आर अ शेल्टर, sustenance and road forwards. This is why people should be given more opportunity to read book. You can say that people should be given more opportunities to read books because they are safe shelter, sustenance and road forwards. यानी कि ये क्या है, टेक्नोलॉजी आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं. सस्टेंसेस आपके लिए जरिए मॉश एंड रोड फॉरवर्ड्स यानी डेवलपिंग रोड्स आपके लिए क्रिएट करती हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ विच बुक हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट एंड वाई. मीन्स आप इस क्वेश्चन को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं. लाइक आई लाइक नॉवल, मुझे क्योंकि नॉवल पसंद है. आई लाइक नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी बिकॉज इट प्रूव्ड अस अ वेरी यूनिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ. मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट. कि इंसान जो है यानी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मोटिवेटेड नॉवल. इसमें यानी कि एक मैंस की डिटर्मिनेशन को बताया गया कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट. इंसान जो है वो हारने के लिए पैदा नहीं हुआ. अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड. इंसान को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता. यानी इसमें मैंस डिटर्मिनेशन, उसकी पावर को जो है इसमें डिस्कस किया गया. इट्स वेरी मोटिवेटेड नॉवल. आई सजेस्ट यू विल रीड दिस नॉवल. नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन के आंसर अकॉर्डिंग टू योर लाइक्स भी आप इसको लिख सकते हैं. अगर किसी को कोई और बुक पसंद है तो वो इसमें अपनी उस बुक को बारे में लिख सकते हैं, उससे क्यों पसंद है ये भी यानी कि एक सेंटेंस उसके सपोर्ट में भी लिखना होगा. So these are the questions of this chapter. You have to learn these questions and also glossary of this chapter. Thank you so much students. Allah Hafiz.